Good morning, students. Today we will do polynomials. Before doing polynomials, let us read what is an algebraic expression. An algebraic expression is an expression made up of variables and constants along with mathematical operators. Algebraic expression क्या होता है? एक ऐसा expression जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं और कॉन्स्टेंट्स भी हैं अलॉन्ग विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हमें तीन वर्ड सुनने को मिले: वेरिएबल, constants and mathematical operators. Now what are variables? All the literals, that is x, y, z, a, b, c, that we use in an expression are known as variables whose value changes. And now what are constants? All the numbers, integers, fractions that we use whose value remains constant that and their value does not change are known as constants. And what are mathematical operators? Addition, subtraction, division, multiplication. These all are mathematical operators. So what is an algebraic expression? It is a combination of variables, constants and mathematical operators. An algebraic expression is a sum of terms which are considered to be building block for expression. अब algebraic expression में क्या होता है? बहुत सारे terms होते हैं जिन्हें हम एक building block बोलते हैं किसी भी expression का. Now, what is a term? A term is a product of variable and constant. Term क्या होता है? Variable और constant का product. जैसे 2x, 2xy. It is called term. A term can be an algebraic expression in itself. एक term जैसे 2xy, 3x square, इसको भी हम एक algebraic expression कह सकते हैं. Examples of a term are -3, which is just a constant. अगर हम एक एग्जाम्पल लें किसी भी टर्म का, जैसे कि हमने लिया -3. अब -3 में वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है सिर्फ, तो इसे भी हम एक टर्म बोल सकते हैं. -2x विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट 2 एंड द वेरिएबल x. -2x भी एक टर्म है जिसमें कांस्टेंट क्या है? 2 है, -2 एंड वेरिएबल इज x. -4xy, in this constant is 4 and variables are x and y. 5x 2y. Now 5, it is 5x square y. So there are two variables and one constant, that is 5, and x is being repeated, that is we have written x square. Now the constant in each term is referred to as the coefficient. अब हम constant को coefficient भी बोल सकते हैं. कांस्टेंट को हम अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो हम कांस्टेंट को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलेंगे. एग्जांपल ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज 3x 2y 3x square y. It is not 2y, it is square y. 3x square y plus 4xy plus 5x plus 6, which is the sum of four terms: 3x square y, 4xy, 5x and 6. Right? So in this algebraic expression sorry, there are four terms. What are the terms? 3x square y, 4xy, 5x and 6. Now, an algebraic expression can have any number of terms. अब क्या आप बता सकते हो किसी भी algebraic expression में कितने number of terms हो सकते हैं at maximum? No, we can't tell because an algebraic expression can have maximum number of terms, any number of terms. The coefficient in each term can be any real number. Coefficient कोई भी real number हो सकता है. Either it can be complex or it can be rational or it can be rational. There can be any number of variables in an algebraic expression. Variables भी कितने भी हो सकते हैं. The exponents on the variables, however, must be rational number. लेकिन किसी भी algebraic expression में कोई जो भी एक्सपोनेंट होती है वेरिएबल पे, जैसे x के ऊपर पावर क्या थी? 2 थी. कोई भी पावर होगी तो वो रैशनल नंबर होनी चाहिए, इरेशनल नहीं हो सकती. Now let us take what is polynomial. An algebraic expression can have exponents that are rational numbers. However, polynomial is an algebraic expression in which the exponent on any variable is whole number. अब आपको समझ में आया होगा polynomial क्या. सबसे पहले हम algebraic expression कहते हैं. Algebraic expression क्या होता है? इसमें जो भी variables होते हैं उसमें पावर रैशनल नंबर हो सकती है कोई भी. जैसे हम x की पावर 3/2, इट इज अ पॉलिनोमियल. 1/x, यहाँ पे क्या हुआ? x की पावर क्या हो गई? -1 हो गई. तो कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. लेकिन अगर कोई नंबर पॉलिनोमियल है
तो उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो पावर होती है, जो भी एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, दैट शुड बी अ होल नंबर, दैट शुड स्टार्ट विद 0. नाउ 5x cube plus 3x plus 1 is an example of polynomial. अब 5x cube है, x की पावर कितनी है पहले टर्म में 3, दूसरे टर्म में x की पावर कितनी है 1, तीसरे टर्म में नहीं है कोई भी x, तो इसमें सारी पावर्स आप देखिए होल नंबर है, 3 है, 1 है और 0 है x की पावर. तो इस तरह लिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है और इसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं. लेकिन 2x plus 3 root x, अब 2x plus 3 root x, अब पहले टर्म में 2x है, 2x में x की पावर क्या है 1 प्लस 3 रूट x, अब दूसरे टर्म में 3 रूट x में x की पावर क्या है 1/2, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें x की पावर 1/2 है. लेकिन इसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में पावर जो होती है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है. Now coming forward to degree of a polynomial. For a polynomial in one variable, the highest exponent on the variable in a polynomial is the degree of the polynomial. Now what is the degree in the polynomial? किसी भी polynomial में जो भी highest exponent होती है वो उसकी degree कहलाती है. जैसे the example degree of the polynomial, अब यहाँ पे देखिए x square plus 2x, it is not x2, it is x square plus 2x plus 3. यहाँ पे x की पावर पहले टर्म में 2 है, दूसरे टर्म में 1 है, तीसरे टर्म में x है ही नहीं, तो उसकी पावर 0 मानेंगे हम x की पावर. तो इसकी डिग्री क्या होगी 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितना है 2. एज द हाईएस्ट पावर इन द x इन द गिवन एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर. अब x की पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, सो डिग्री क्या हुई इस पॉलिनोमियल की 2. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उस पॉलिनोमियल में. सेकंड वन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अब उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है. लेट अस सी हाउ. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम देखते हैं पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन मोनोमियल. मोनो से आपको समझ रहा होगा वन, मोनो मीन्स वन. सो मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है इन विच there is only one term, a polynomial with just one term. जैसे 2x, 6x square, 9xy, these are examples of monomial. Now let us take an example of binomial. A polynomial with two terms. अब bi means two. Binomial में two terms होंगे, जैसे 4x square plus x, 5x plus 4, 3xy plus 2. These are all the examples of binomial. Now trinomial, a polynomial with three terms. Any polynomial which is having three terms is known as trinomial. जैसे x square plus 3x plus 4. We can take another example, xy plus x plus y. This is also a polynomial in which there are three terms. अगर आप three terms के आगे 4 terms लें तो उसे बोलेंगे हम quadrinomial. इसी तरह से बहुत सारे, in general we call it polynomial. If it is having one term monomial, two term binomial, three terms trinomial. Now types of polynomial based on degree. अब degree means highest power कितनी है polynomial की. First of all let us take linear polynomial. A polynomial whose degree is 1 is called linear polynomial. Now what is linear polynomial? एक ऐसा polynomial जिसमें x, y जो भी variable है उसकी highest power 1 होनी चाहिए, degree should be 1. जैसे 2x plus 1, 3x plus y, 7x plus 2. These are the examples of linear polynomial. Now let us see quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. For example 3x square plus 8x plus 5. Quadratic polynomial में डिग्री कितना होना चाहिए 2. क्यूबिक polynomial, a polynomial with degree 3. अब ऐसा polynomial जिसमें highest power 3 है, it will be cubic polynomial. For example 2x cube plus 5x square plus 9x plus 15 is a cubic polynomial. Now zeros of a polynomial. A zero of a polynomial px is the value of x for which the value of px is 0. If k is 0 of px, then अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी वैल्यू x की, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इसमें x की ऐसी वैल्यू मैं रखूं जिससे इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए. इफ आई पुट x इज इक्वल्स टू 1, let us see what happen. If I put x equals to 1, then p1 equals to
1 square minus 3 into 1 plus 2. I have put everywhere x is equals to 1. So 1 square minus 3 plus 2, its value becomes 0. आपने देखा अगर हमने x की जगह पे 1 रखा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0. दैट मीन्स 1 is the 0 of the polynomial. Now geometric meaning of zeros of polynomial. Geometrically, zeros of a polynomial are the points where the graph cuts the x-axis. अब zeros of polynomial का मतलब क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अगर हम इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ टच करेगा? x इक्वल्स टू 1 पे टच करेगा. जहाँ पे 1 है उस पॉइंट से ग्राफ जरूर पास होगा, क्योंकि 1x का इस पॉलिनोमियल का 0 है. 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का यही मतलब होता है. लेट अस टेक सी हाउ. अगर आप फर्स्ट ग्राफ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्लोपी स्ट्रेट लाइन है जो कि -2 पॉइंट पे कट कर रही है. इसका मतलब इस लाइन का जो भी 0 होगा तो वो एक 0 होगा. क्यों एक 0 होगा? क्योंकि वो एक ही बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को. इन द सेकेंड ग्राफ वी कैन सी जो हमारी लाइन है, ग्रीन लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है? एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है. तो इसलिए इस इक्वेशन का, इस लाइन जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है, उस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होंगे. क्यों? क्योंकि ये 2 जगह पे कट कर रही है. 2 जीरोज होंगे उस इक्वेशन के. आप ये भी कहेंगे कि एक बार y पे भी कट कर रही है, लेकिन हम y वाली वैल्यू को हम नहीं देखते. हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है. आप थर्ड इक्वेशन को देखिए, थर्ड ग्राफ को देखिए. थर्ड ग्राफ में आप देखेंगे 3 पॉइंट पे ये लाइन, ग्रीन लाइन x एक्सिस को कट कर रही है. a पॉइंट पे, b पॉइंट पे और c पॉइंट पे. राइट. सो जो ये जिस इक्वेशन का ये ग्रीन वाला ग्राफ होगा, उस इक्वेशन के 3 जीरोस होंगे. क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है. नंबर ऑफ जीरोस. इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस. अब कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो उसके जीरोस कितने हो सकते हैं? n जीरोस. जैसे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. हाईएस्ट पावर क्या है? x की 2. सो इट्स डिग्री विल बी 2. तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? या फिर इस इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे. ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं. वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं. तो हमेशा ये आपको याद रखना है, किसी भी इक्वेशन के जितनी उसकी डिग्री है उसके उतने ही जीरोस हो सकते हैं. अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 डिग्री होती है. तो इसलिए उसका 1 0 होता है. आपने अपनी जूनियर क्लासेस में सॉल्व किया लीनियर इक्वेशन, जैसे 3x इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? 6/3 दैट इज 2. तो एक ही वैल्यू आएगी ना x की, जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. तो यू कैन सी लीनियर इक्वेशन के हाईएस्ट पावर और डिग्री 1 होती है, इसीलिए इसका 1 0 होता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए उसके 2 जीरोस होंगे. एट मोस्ट. कम भी हो सकते हैं 2 से, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते. अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे. अब कोई बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 4 होती है, तो उस इक्वेशन के हमेशा जीरोस कितने होंगे? 4 जीरोस होंगे. तो in today's class we have learned difference between polynomial and algebraic expression. क्या डिफरेंस होता है? पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा या फिर पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा होल नंबर होती है, बट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में पावर रैशनल नंबर भी हो सकती है. फिर हमने इसके बाद में पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स देखे, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. और डिग्री के हिसाब से होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. फिर उसके बाद में हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात की. जीरो क्या होता है? जिस वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई करे या फिर उस इक्वेशन की वैल्यू 0 आए इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का फिर हमने ग्राफिकल मीनिंग देखा. हमने क्या देखा? जीरो
जो भी ग्राफ है किसी भी इक्वेशन का, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा होता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। इसलिए अगर लीनियर और फिर हमने देखा अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके एटमोस्ट n जीरोज होंगे, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0, क्वाड्रेटिक का 2 0 एंड क्यूबिक के 3 जीरोज होते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू रिवाइज व्हाट वी हैव डिड टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।